ایک پاکستانی کمانڈو کی سرگزشت، پاک فوج کا جوان، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ایک جنگجو کی آپ بیتی، بھارتی ایجنسیوں کو ناکوں چنے چبانے والا گوریلا، ایک ایسا بازیگر جسے خوف چھو کر بھی نہ گزرا، ریاض عاقب کوہلر کے قلم سے نکلی ایک لازوال کہانی۔ میران شاہ تک روڈ پختہ تھا اور چاروں اطراف دیکھنے پر صرف پہاڑ ہی پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ اس میں خشک اور سرسبز ہر قسم کے پہاڑ شامل تھے۔ مزید 2 گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم میران شاہ پہنچ گئے۔ گاڑی سے اتر کر میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ چچا فاضل کے واقف کار شاہ گل خان کے ہوٹل کے متعلق ایک شخص سے پوچھا۔ شاہ گل خان؟ میں نے جلدی سے لقمہ دیا۔ جی، لوگ انہیں شاہ جی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس دوران امجد خاموش کھڑا رہا کیونکہ ساری گفتگو پشتو میں ہو رہی تھی۔ میری بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا شاہ جی، یوں کہو نا، آپ اس طرح کریں کہ، یہ کہہ کر اس نے مختصراً ہمیں شاہ جی کے ہوٹل کی لوکیشن بتا دی جو اڈے سے نزدیک ہی تھا۔ اللہ کا شکر کر کے ہم ہوٹل کی سمت بڑھ گئے۔ میرے ساتھ قدم ملاتے ہوئے امجد بولا، یار یہ تو کوئی عجیب قسم کی پشتو بولتے ہیں، آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی؟ میں نے کہا آئی ہے، مگر اتنی نہیں، بلکہ چند دن کے بعد تو یہ الجھن بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ بولا، یار غلطی ہو گئی ہے، کلاشنکوف ساتھ لانی چاہیے تھی۔ امجد دائیں بائیں گزرنے والے ہتھیار بند افراد کو دیکھ کر افسوس میں سر ہلا رہا تھا۔ یہاں تو بچوں تک نے ہتھیار کندھے سے لٹکائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں یار، چچا فاضل نے بتایا تو تھا کہ یہ ان لوگوں کی ثقافت ہے، روٹی کے بغیر رہنا تو شاید یہ لوگ برداشت کر لیں، ہتھیار کے بغیر نہیں۔ امجد بولا، گرمی دیکھو اور ان کی پگڑیاں دیکھو۔ میں نے اسے جھڑکا، انہوں نے تیرے ننگے سر پر اعتراض کیا ہے جو تو ان کی پگڑیوں پر معترض ہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنس دیا۔ دیکھو نا یار، کچھ نوجوانوں نے فقط ٹوپی سر پر رکھی ہوئی ہے تو سب کو اسی طرح کرنا چاہیے، اتنی لمبی لمبی زلفیں، اوپر سے پگڑی، اور پھر گرمی دیکھو۔ اس وقت تک ہم مطلوبہ ہوٹل تک پہنچ گئے تھے، اس لیے میں جواب میں خاموش رہا۔ ہوٹل عجیب طرز تعمیر کا نمونہ تھا۔ کرسیوں، ٹیبلوں اور چارپائیوں کی بجائے مٹی گارے سے بڑے بڑے تھڑوں کی مانند جگہیں بنائی گئی تھیں جن پر کھجور کے پتوں سے بنائی ہوئی چٹائیاں اور ان کے اوپر سبز رنگ کی پلاسٹک شیٹیں بچھائی گئی تھی۔ گاہک جوتے اتار کر بڑی بے تکلفی سے ان پر براجمان تھے۔ لکڑی کا ایک شوکیس اور اس کے پیچھے چارپائی ڈال کر استقبالیہ کاؤنٹر کی شکل ترتیب دی گئی تھی۔ چارپائی پر سرخ گھنی داڑھی والا ایک شخص تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ داڑھی کا رنگ لازماً مہندی کا مرہون منت تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا کہ وہ شاہ گل عرف شاہ جی تھا، کیونکہ اس کا حلیہ چچا فاضل نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا تھا۔ السلام علیکم۔ ایک گاہک کو بقایا پیسے واپس کرتے ہوئے اس نے خوش دلی سے میرے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کہا ہم نے شاہ گل خان سے ملنا ہے۔ وہ مسکرایا، تو ملے نا، غریب کو ہی شاہ گل خان کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مسافے کے لیے میری جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، ہم ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں، فاضل جان رحمان خیل والے نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر معانقے کے لیے اپنے بازو پھیلا دیے۔ فاضل جان، وہ تو میرا جگر ہے، جگر۔ مجھے اپنے بازو میں خوب بھینچ کر اس نے امجد کے ساتھ بھی یہی سلوک دہرایا۔ اس نے چارپائی کی جانب اشارہ کیا، بیٹھو اور سناؤ فاضل کیسا ہے اور آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ میں نے کہا وہ میرا سگا چچا ہے۔ وہ بولا، اس کا مطلب ہے آپ ہاشم جان کے بیٹے ہیں۔ وہ غالباً ہماری فیملی سے متعلق کافی معلومات رکھتا تھا، اس لیے بے دھڑک اس نے میرے ابو جان مرحوم کا نام لے لیا۔ میں مختصراً بولا جی۔ اس نے امجد کی طرف اشارہ کیا، اور یہ؟ میں نے کہا یہ میرا دوست ہے۔ کہہ کر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور لڑکے کو آواز دی جو گاہکوں کو ان کی مطلوبہ چیزیں سرو کر رہا تھا، وہ لڑکے لسی کا جگ لے آؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ لڑکے نے کہا آیا شاہ جی، اور شاہ جی دوبارہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ہمارے مختصر بیگوں کو دیکھتے ہوئے بولا، بس یہی سامان ہے آپ کے پاس؟ باقی سامان اڈے میں چھوڑ آئے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، بس یہی سامان ہے۔ وہ بولا، فاضل خود کیوں نہیں آیا؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، چچا وہ فی الحال نہیں آ سکتے۔ اس مرتبہ اس کا مخاطب امجد تھا۔ آپ بھی رحمان خیل سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواباً امجد نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں جلدی سے بولا، یہ پشتو بولنا نہیں جانتا۔ شاہ جی مسکراتے ہوئے بولے، چلو ہم تو اردو جانتا ہے نا۔ اسی وقت لڑکا لسی کا جگ لے آیا۔ اسٹیل کے گلاسوں میں اس نے ہمیں ٹھنڈی میٹھی لسی پیش کی۔ 2 گلاس لسی پی کر ہماری تھکن دور ہو گئی۔ شاہ جی نے چارپائی سے اٹھ کر ہمارے سفری بیگ اٹھا لیے۔ اچھا پہلے گھر چلتے ہیں،
आप लोग नहा कर फ्रेश हो जाएं, उसके बाद खाना खाएंगे। हमने उससे बैग लेने की कोशिश की, चचा प्लीज ये हम खुद उठा लेंगे, मगर उसने झिड़क दिया, आराम से चलो, ये ना हो मैं तुम दोनों को भी कंधों पर उठा लूं। ये बात चूंकि उसने पश्तो में कही थी इसलिए अमजद सही तौर पर समझ न सका और अभी तक उसके हाथ से बैग लेने पर मुसिर रहा। वो अमजद से टूटी फूटी उर्दू में बोला, अलका मैं कहता हूँ हम तुमको भी उठा लेगा। अमजद ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है बैग मुझे दे दो, मैं खुद ही आपके कंधों पर बैठ जाऊंगा। मगर शाहजी इनकार में सर हिलाकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। मजबूरन हम भी उसके पीछे चल पड़े। बाजार से निकलकर हम गलियों में दाखिल हो गए। ज्यादातर मकानात कच्चे ब्लॉकों के बनाए हुए थे। इक्का दुक्का पुख्ता ईंटों से बने हुए घर भी नजर आ रहे थे। शाहजी हमें लेकर एक बड़े पुख्ता मकान के सामने पहुंचा और फिर उससे मुल्हिका बैठक का दरवाजा खोलकर हमें अंदर बुला लिया। बैठक बजाते खुद एक छोटा सा मकान नजर आ रही थी कि उसमें एक छोटा सा सहन और बाथरूम वगैरह बना हुआ था। शाहगुल बैठक और घर को मिलाने वाले दरवाजे से अंदर घुस गया। आप लोग नहा लें, मैं घर से हुआ हूँ। मुझे पता था कि वो खाने का बंदोबस्त करने गया है। असर का टाइम हो रहा था और ये टाइम न दिन के खाने का था और ना ही रात के, मगर उस इलाके में मेहमान से खाने के मुतालिक पूछना अच्छा नहीं समझा जाता और खाना लाकर मेहमान के सामने रख दिया जाता है। अलबत्ता मेहमान खुद बाइसरार मेजबान को मना कर दे कि वो इस वक्त खाने का तकल्लुफ न करे तो ये अलग बात है, मगर मैंने ऐसी कोशिश नहीं की क्योंकि रास्ते में हम खाना नहीं खा सके थे और उस वक्त अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी। बाथरूम के अंदर पानी का भरा हुआ ड्रम, एक बाल्टी और मग्गा भी मौजूद था। जब तक हमने नहाकर कपड़े बदले, शाहगुल खान पुरतकल्लुफ खाने के साथ हाजिर हो गया। खाना लेकर आने वाला उसका बेटा था क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल शाहगुल के मुशाबे थी। खाना खाकर हम आराम के लिए लेट गए। मेरा इरादा था कि रात को शाहगुल खान से तफसीली बात करूंगा। रात को इशा की नमाज के बाद मैं तफसील से शाहगुल को अकबर खान से अपनी दुश्मनी की वजूहात और अपने घर वालों के साथ गुजरे हादसे की तफसीलात सुना चुका था। वो बोला, बेटे ये सब कुछ सुनकर बहुत अफसोस हुआ, मैं फाजिल के पास जाऊंगा ताजियत के लिए। बहरहाल बतौर मेजबान मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके साथ गुजरे हादसे की वजह से ये पूछना मेरी मजबूरी है कि आपकी मेरे पास आमद किस सिलसिले में हुई है। मुख्तसरन ये कि मेरे लायक क्या हुक्म है। मैंने कहा, हम चौधरी अकबर के ताकुब में यहाँ पहुँचे हैं। उसके बारे में हमें पता चला है कि वो मीरान शाह के किसी बहादुर खान नामी शख्स के पनाह लिए हुए हैं। आप उसका एड्रेस हमें मालूम कर दें, बाकी हमारा अपना काम है। वो बोला, मैं बहादुर खान नाम के 2 मलिकों को जानता हूँ। एक यहीं का रिहायशी है और उसके साथ मेरी काफी गपशप भी है। दूसरा दगन का मलिक है। दगन मीरान शाह से चंद किलोमीटर दूर है और वो हाजी बहादुर काफी असर व रसूख रखता है। इसके अलावा कोई मलिक हाजी बहादुर मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल मैं सुबह चौधरी अकबर के मुतालिक आपकी मतलूबा मालूमात हासिल कर लूंगा। अगर वो इस इलाके में आया हुआ है तो मैं इंशाल्लाह उसे ढूंढ निकालूंगा। और कोई खिदमत? मैंने कहा, हथियार भी चाहिए, कहाँ से खरीदें? वो बोला, उनका बंदोबस्त भी हो जाएगा। और कुछ? मैंने कहा, और ये कि हमारे नाम सीगाए राज में रहें, ये न हो चौधरी को हमारे बारे में सुनगुन मिले और वो एक मर्तबा फिर गायब हो जाए। वो बोला, अगर एक दफा मिल गया तो फिर इंशाल्लाह गायब नहीं हो सकेगा। मैंने कहा, इंशाल्लाह। शाहगुल खामोश बैठे अमजद से मुखातिब हुआ, खोचे तुम तंग तो नहीं होता हमारी बातों से? वो बोला, नहीं खान चचा, मुझे थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, बाकी बातें बाद में जानू से पूछ लेता हूँ। इसको इसीलिए तो साथ लाया हूँ, वरना अकेला आ जाता। उसकी बात सुनकर मैं तो हंस पड़ा, जबकि शाहगुल ने हैरानी से पूछा, अकेला आने का क्या मतलब? वो बोला, वैसे ही मजाक कर रहा था चचा। शाहगुल इस बात में सर हिलाते हुए बोला, अच्छा अच्छा ऐसे बोलो ना, गपबाज है। मैं उसे अमजद के दिए गए नाम से पुकारा। वैसे खान चचा, अगर बिलफर्ज चौधरी दगन के हाजी बहादुर के पास हमें मिल जाता है तो क्या वो उसे आसानी से हमारे हवाले करने पर राजी हो जाएगा? उसने इनकार में सर हिलाया, नामुमकिन। मलिक किसी कीमत पर उसे तुम्हारे हवाले नहीं करेगा। बल्कि वो क्या, अगर चौधरी ने मेरी पनाह भी ली होती तो मैं भी उसे तुम्हारे हवाले न करता। ये हमारी रिवायात के खिलाफ है। मैंने कहा, लेकिन खान चचा, चौधरी से बदला किस तरह लेंगे? ये ना हो उसे हलाक करके खामखा मलिक बहादुर की दुश्मनी मोल लेनी पड़े। वो बोला, भाई चौधरी हमेशा तो उसका मेहमान नहीं रहेगा ना, बल्कि हो सकता है चौधरी अब तक उसके पास से चला गया हो। सारी जिंदगी कौन किसी के दर पर पड़े रहने को गवारा कर सकता है? और जहाँ तक चौधरी का ताल्लुक है, वो तो तुम्हारे बकौल अच्छा खासा जमींदार है। उसने तो शायद चंद दिन बाद ही अपने लिए ठिकाने का बंदोबस्त कर लिया हो। यूं भी उसे इलाका गैर में किस चीज का खौफ हो सकता है? पुलिस का इधर कोई अमल दखल नहीं, और आप लोग तो उसके इल्म के मुताबिक उसके इस इलाके में रूपोशी से लाइल्म हो। शाहगुल ने हालात का उम्मीद अफजा तज्जिया किया। मैंने कहा, यह भी तो हो सकता है कि
وہ यहाँ रहने की बजाय किसी ऐसी जगह चला गया हो जिसकी बाबत खान बहादुर भी लाइल्म हो। खान चचा ने इनकार में सर हिलाया, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ आने के बाद उसने हाजी बहादुर का अदना सा भी सहारा लिया है तो वो कभी भी उसे लाइल्म नहीं रखेगा। मैंने कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो बोला, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अब आप लोग आराम करो, सुबह मैं शाहजमान को दगन भेजूंगा। शाहजमान उसके बड़े बेटे का नाम था। बोला, लड़का सियाना है, वो लाजिमन चौधरी को ढूंढ निकालेगा, बशर्ते चौधरी वहाँ पर हुआ। उसके जाने के बाद अमजद काफी देर मेरा सर खाता रहा और जब तक उसने खान चचा से होने वाली सारी गुफ्तगू हर्फ बहर्फ न सुन ली, मेरी जान न छोड़ी। सब कुछ सुन लेने के बाद उसने मौजूदा हालात के मुतालिक एक दो उल्टे सीधे तबसरे किए और करवट बदल कर सो गया। लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। माजी हाल और मुस्तकबिल के गोरख धंधे में मैं अजीब अंदाज में फंसा हुआ था। मेरा जिस्म हाल में था तो दिल माजी में और दिमाग मुस्तकबिल के घोर अंधेरों में टामक टोया मार रहा था। मेरे प्यारे माजी में रह गए थे। उनसे मिलने की ना तो उम्मीद थी और ना ही इम्कान, मगर वो भुलाए नहीं भूलते थे। मुस्तकबिल में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ी खुशी चौधरी अकबर को इबरतनाक अंजाम से दो चार करना था। शायद उसके बाद मैं खुद भी जिंदा न रह पाता। जमीला बाजी और चचा फाजिल के अलावा मेरा कोई अपना नहीं बचा था। अमजद ने मेरे लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी थी और हकीकी मानों में मेरे सगे भाइयों के मानिंद साबित हुआ था। मगर उसकी मोहब्बतों में मुझे हाकिम जान, मोहम्मद जान और अहमद जान नहीं भूल सकते थे। सादिया का नेमुल बदल मिलना बड़ा मुश्किल था। शीतल एक ऐसी लड़की थी जो शायद इस खला को थोड़ा बहुत पुर कर सकती, मगर मेरी जानिब से मुसलसल बेएतनाई शायद उसे भी कोई दूसरा साथी ढूंढने पर मजबूर कर देती। बल्कि हो सकता था कि अब तक उसने ढूंढ भी लिया हो। मेरे जहन में शीतल से सुनी हुई नज्म गूंजी, तुम्हें भी तो खबर होगी कि दरिया पास बहते हुए तो पानी अच्छा लगता है। किनारों से जुड़ी मिट्टी से पूछो रोग चाहत के कि उस पानी की चाहत में किनारों से उखड़ कर अजनबी देशों में जाना कितना मुश्किल है। किनारा फिर नहीं मिलता। तुम्हें बस इतना कहना है, यहाँ जो भी बिछड़ जाए दोबारा फिर नहीं मिलता। ठीक कहती थी वो, बिछड़ने वाले दोबारा नहीं मिलते। मेरे दिमाग में तल्ख सोच गूंजी। नमकीन कतरे मेरी आंखों से निकलकर कानों को भिगोते हुए तकिए में जज्ब होने लगे। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। मैंने ज़ेर लब दुआ मांगी और अपनी सोचों के धारे को माजी से हटाकर चौधरी अकबर के खिलाफ महाज आराई के तरीके तरतीब देने पर माइल करने लगा। ये वो वाहिद मौजू था जिसके मुतालिक सोचते हुए दूसरे गम जहन से महव हो जाते। ये तदबीर कामयाब रही और ये कुछ सोचते सोचते नींद की मेहरबान देवी ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। अगले रोज हम दिन चढ़े उठे। रोजमर्रा के मामूलात से फारिग होने के बाद खान चचा हमें एक असलहा डीलर के पास ले गया। अपने बेटे शाहजमान को वो सुबह सवेरे दगन रवाना कर चुका था। असलहा डीलर शाहजी का गहरा दोस्त था। उसके कहने पर वो हमें दुकान की बजाय अपने घर से मुल्हिका स्टोर में ले आया, जहां आला किस्म का देसी और बदेसी असलहा मौजूद था। स्टोर के अंदर घुसते ही अमजद हैरान हो गया, इधर तो रॉकेट लॉन्चर भी पड़े हैं। दुकानदार ने कहा, यहाँ पे आपको 12.7 mm और AGS 710 भी मिल सकती है। और हम सर हिलाकर रह गए। वो हथियार हमारे किसी काम के नहीं थे। रॉकेट लॉन्चर को अपनी कारकर्दगी की निस्बत वजन में बहुत हल्का होता है, यानी सिर्फ 6 किलो के बकदर उसका वजन होता है, मगर उसके एक गोले का वजन 2.5 किलो के करीब होता है। इस तरह एक सेहतमंद शख्स सिर्फ 3 से 4 गोले ही अपने साथ आसानी से ले जा सकता है और इन गोलों से किसी भी छोटे मोटे मकान को मलबे के ढेर में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन हम जिस किस्म की जंग की तैयारी में थे उसमें ये कहीं पे भी फिट नहीं बैठता था। और जहां तक ताल्लुक था 12.7 mm का, तो उसका तो वजन भी इतना ज्यादा होता है कि उसको फकत उठाने के लिए 3 से 4 आदमी चाहिए। इस तरह ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर यानी AGS 17 भी हमारे किसी काम की नहीं थी। इसके अलावा भी हमें स्टोर में ऐसे कई कारआमद हथियार दिखाई दिए जो पसंद तो बहुत आए, मगर हमारी लड़ाई के लिए सूदमंद नहीं थे। इनमें 12 बोर बंदूकें, स्नाइपर राइफलें जिनके साथ टेलीस्कोप भी फिट थे और मुख्तलिफ बोर के पिस्तौल शामिल थे। हमारे मतलब की राइफल सिर्फ AK-47 असॉल्ट राइफल थी, जिसे उर्फ आम में क्लैशनकोफ कहते हैं। हम दोनों ने क्लोज बट की 2 क्लैशनकोफे पसंद की, जिनकी बैरल कलम की तरह तराशी हुई थी। इसके अलावा मुझे लकड़ी के दस्ते का बरेटा पिस्तौल भी पसंद आया, मगर दुकानदार ने बताया कि वो दर्रे आदम खेल का तैयार करता है और नकल बमुताबिक असल था।
उसकी बजाय उसने जर्मनी का बना हुआ मार्क 13mm मेरे सामने रखा, जो वजन में बरेटा से हल्का था और रेंज भी काफी ज्यादा थी। मैगजीन में 6 राउंड आते थे जो कि आम पिस्तौलों से काफी मोटे थे। दुकानदार की पसंद पर मैंने वही ले लिया। क्लैशनकोफ के अंदर स्लिंग डालकर कंधे से लटकाते हुए मैंने पूछा, पैसे कितने हुए? दुकानदार ने कहा, पैसों की अदायगी शाह जी ने कर दी है। मैंने कहा, क्या मतलब? खान चाचा ने टूटी फूटी उर्दू में कहा, मतलब ये कि हमारा तरफ से तुम लोगों का तोहफा। मैंने कहा, मगर खान चचा इतने कीमती तोहफे? वो बोले, कोई कीमत नहीं है भाई, बस अब चलो। हम दुकानदार से रुखसती मुसाफा करके उसके साथ चल पड़े। उस वक्त क्लैशनकोफ तकरीबन 7,000 की मिल जाती थी, जबकि आजकल 45,000 से 65 और 75,000 इसकी कीमत है। और उसकी कीमत में इतना इजाफा परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में हुआ। वहाँ से हम सीधे खान चचा की बैठक में पहुंचे। आप लोग गपशप करें, मैं हाजी बहादुर से हुआ हूँ। हाजी बहादुर से उसकी मुराद मीरान शाह वाला हाजी बहादुर था, क्योंकि दगन वाले हाजी बहादुर के पास वो अपने बेटे को भेज चुका था। शाह जी के बैठक से निकलते ही अमजद ने पूछा, अब क्या इरादा है जानू साहब? मैंने कहा, फिलहाल तो इंतजार है शाहजमान और खान चचा की रिपोर्टों का, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। वो बोला, बिलफर्ज दोनों मलिक चौधरी से ला इल्म हुए तब क्या करेंगे? मैंने कहा, तब मीरान शाह और उसके मज़ाफाती इलाके में किसी और हाजी बहादुर को तलाश करेंगे, क्योंकि मीर नियाज खान के कहने के मुताबिक वो किसी हाजी बहादुर का ही मेहमान बनकर आया है। अगर इस तरह नाकामी हुई तो वापस जाकर मीर नियाज खान से दो हाथ करेंगे और इस मर्तबा उसे साथ ही लेकर आएंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। वो बोला, उस वक्त भी तो मैंने यही कहा था, मगर तुम्हें अमन पसंद बनने का शौक चढ़ा हुआ था। मैंने कहा, अमन पसंद मैं अब भी हूँ। वो बोला, गौतम बुद्ध साहब, अमन से हर जगह काम नहीं चलता और दोगली हरकतों से भी परहेज करो। गजब खुदा का, एक छोड़ दो हथियार अपने साथ रखते हो और अमन पसंदी के दावे। मैंने कहा, माजे साहब, मैंने अर्ज किया है मैं खामखा की कत्ल गारत नापसंद करता हूँ, समझे? वो बोला, ये भी झूठ है, वरना एक हिंदू लड़की के लिए तू इतनी लाशें ना गिराता इंडिया में। तुझे क्या था, हिंदू लड़की है और हिंदुओं ही ने पकड़ी हुई है। वो मुझे गुस्सा दिलाता हुआ बोला। मुझे पता चल गया कि उसके पास काम की कोई बात नहीं है, इसलिए सवाल गंदुम और जवाब चना के मिस्ताक वो बात को कहीं से कहीं ले गया। मैंने कहा, चलो शैला बीबी को जब कोई मुसलमान छेड़े तो तुम भी खामोश रहना। वो बोला, अरे वाह, मैंने कब कहा कि मैं अमन पसंद हूँ? वैसे भी शहला और शीतल का क्या जोड़? मैंने कहा, बात तो तेरी सही है, शीतल और शहला का वाकई कोई जोड़ नहीं। शहला अगर अपनी मौजूदा शक्ल से 100 गुना भी ज्यादा खूबसूरत हो जाए तब भी शीतल से हमसरी का दावा नहीं कर सकती। वो हंसते हुए बोला, अरे भाई बस करो, अगर इतनी अच्छी थी तो यूं इंडिया में न छोड़ आते, अपने साथ ही लेकर आते। उसके मजाक के जवाब में मैं संजीदा हो गया। मैं शादीशुदा था, उस वक्त सादिया जिंदा थी, उस पर सौकन ले आता। सादिया के जिक्र पर वो भी संजीदा हो गया। सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने कहा, मुझे पता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि शीतल की तरह हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वो बोला, इसका मतलब है चौधरी के अंजाम के बाद जनाब एक दफा फिर इंडिया जाने का सोच रहे हैं? मैंने इनकार में सर हिलाया। नहीं यार, पहली बात तो ये है कि ऐसी लड़की जो अमीर कबीर होते हुए हुस्न की दौलत से भी मालामाल हो, उसके चाहने वाले हजारों नहीं लाखों होंगे, और मेरी बनास्पति मोहब्बत का खुमार किसी लम्हे भी उसके दिल से उतर सकता है, और मेरी जगह उसे कई खूबसूरत दौलतमंद और पढ़े लिखे लड़के मिल सकते हैं। दूसरे यूं ना भी हुआ तब भी वो हिंदू है और मैं मुसलमान एक काफिरा से कैसे शादी कर सकता है? वो बोला, उन लाखों में उसे जानू जैसा कहाँ मिलेगा, और जहाँ तक ताल्लुक है मजहब का तो वो बदल भी सकता है। हिंदू के मुसलमान होने में चंद सेकंड भी नहीं लगते, अगर मेरे रब्बे करीम का करम साथ हो तो। मैंने मार्क 13 उसकी तरफ बढ़ाया। अच्छा छोड़ो यार इस लाजानी मौजू को, तुम ये पिस्तौल देखो कैसा है। वो बोला, शक्ल से तो अच्छा दिख रहा है, वजन में भी हल्का है, अलबत्ता इसकी कारकर्दगी तो फायर करने के बाद ही पता चलेगी। वैसे इसकी कितनी गोलियां साथ ली हैं? मैंने कहा, 6 मैगजीन में हैं और 24 स्पेयर हैं। अमजद ने मशवरा दिया, फायर करके चेक कर लेते हैं, और हम दोनों बैठक के बाहर से कुंडी लगाकर चल पड़े। हमारा रुख पहाड़ी के दामन की तरफ था। गलियों और घरों का बगौर जायजा लेते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी के दामन में पहुंचे। यूं तो मीरान शाह चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है, मगर मगरबी जानिब की पहाड़ी शाहगुल खान के घर के नजदीक थी, इसलिए हमने उसी तरफ का रुख किया। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।